So once again a very sweet good morning to all of my dear friends and dear students, and welcome to the live classes from Suraj School Balana. And as you know, these are your English language classes. In these classes you are learning how to have a nice command or English language. Though students, I would like to tell you that English is a part of our subjects also, and if you take about that syllabus, English is taught as a syllabus subject also. But in that English we get many things, or we learn how to handle the theoretical things, and in grammar we learn many more things. But after that also we face problem in communication. So I hope that these classes somewhere will help you to have a nice command or English English. आपकी बहुत ही मदद कर सकती है if you follow the syllabus and the pattern of this class in nice manner. Just you have to listen, along with it just try to follow the thing which is told in this class. Listen carefully and reply as the answer is, okay? Because if you know how to have the questioning in English as these are told on this board, so you can make question also and you can reply the thing also. So responding the things, that is the part of communication, okay? So you must know how to have the questioning and communication and how to respond the things, okay? If you know these many things, it means you are learning the English, you are using the English, okay? Or after that, if you have any confusion regarding that, so you may report in school campus, or you may say your problem will be resolved if you come to the school campus, okay? After these holidays, please come to the school and have your register. If you get your registration done in this school, so obviously you will get these language classes continue, and you will be able to attend the exact class of English language. Though as you know that this is live class, so in it many more things are not taught, many more things are skipped due to the lack of time. Here just we tell you the basic thing, but many more things like the practice, live practice, and having the discussion regarding the point, okay, and elaboration, many more things are left out of this class, which will be shown you, which will be practiced in a real class if you come to the school, okay? So after holidays, please come to school and have the class in this class to have a nice language, okay? And one more thing I would like to tell, this is just only up to 12th class student, and if any student is interested about 12th class, so for that also we have a program. We have a professional program which is taught at our campus, at our office premises, and in that these professional batches are there who are about 12th class. You may say about 12th, anyone can be here, any professional, any vocational, whosoever is there, whosoever wants to improve the English language skill, may contact to us at our campus at Excellent Institute for English Language on Arnold Road near Port in Mehragarh, okay? So now let's move to the point. Today we are going to have a next step in the English language class. Yesterday we discussed about routine. कल हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था रूटीन के बारे में, ओके? रूटीन मीन्स whatever we do, जो हम करते हैं, ओके? जो हमारी रोजमर्रा का काम होता है, जो हम हर रोज करते हैं, ओके? तो रूटीन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिवाइज वंस अगेन, फिर से रिवाइज करना चाहूँगा कि हम हिंदी में कैसे शो करते हैं रूटीन को। बेटा हिंदी में हम डिस्कस करते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, ओके? फिर ब्रश करता हूँ, ओके? फिर नहाता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, ओके? सो दैट इज योर रूटीन, जो आप हर रोज रिपीट करते हो, ओके? रूटीन आप बोलते हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, फिर मैं क्लास अटेंड करता हूँ, ओके? उससे पहले मॉर्निंग असेंबली जाता हूँ, पहले क्लास मैथ्स की अटेंड करता हूँ, फिर मैं इंग्लिश की क्लास अटेंड करता हूँ, फिर लंच होता है, फिर गेम पीरियड होता है, फिर कंप्यूटर, एंड लाइक दिस यू मे कीप टेलिंग, आप बताते रहते हो, ओके? जस्ट नाउ फाइनली आई एम टेलिंग यू वन थिंग, वही बता रहा हूँ कि हम कैसे शो करते हैं रूटीन को। हम शो करते हैं बाय यूजिंग कर से, कर, का है, ती है, ते हैं, ता हूँ, और ती हूँ, ओके? करता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, अंडरस्टूड? अब इसके लिए हमें इंग्लिश में क्या यूज करना है टू शो दिस रूटीन? रूटीन को शो करने के लिए इंग्लिश में क्या यूज करेंगे बेटा? अगेन वी हैव वन सफिक्स, वी यूज वर्ब फर्स्ट
प्लस एस और ईएस। ओके, और कई जगह ऐसी होती है जहां हम क्या यूज करते हैं, ओनली वर्ब फर्स्ट यूज करते हैं। अब ये भी बताया था आपको वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस कहाँ यूज करेंगे और वर्ब फर्स्ट ओनली कहाँ यूज करेंगे। बेटा हम फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज में आपको क्लू बताता हूँ। जब हमें मिले करता है, ती है ओनली, in that case we have to use verb first plus s or es। यानी कि in end of sentence in Hindi if we get ता है, ती है, in that case we have to use verb first plus s or es। if we do not get it, अगर हमें ये न मिले तो हम क्या यूज करेंगे, लाइक ती है, ये तो हमें मिल गया, इसके अलावा ते है, ता है, ती ही नहीं मिले, so we will use only verb first। फॉर एग्जाम्पल वह खेलता है, वह खेलता है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ता है आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना है, वर्ब फर्स्ट प्लस एस और एस। वह यानी कि ही, और वर्ब फर्स्ट के साथ एस लगा देना। खेलना क्या होता है, प्ले, ही प्लेस। अंडरस्टूड? ओके, और अगर हम इसकी बात करें वर्ब फर्स्ट कहाँ यूज करेंगे, अगर वह की जगह आ जाए कि मैं खेलता हूँ, तो क्या आएगा, आई प्ले। और मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं लूडो खेलता हूँ, मैं लूडो खेलता हूँ, आई प्ले लूडो। अंडरस्टूड? सो लाइक दिस, जब हमारे पास ता है, ती है हो, तो हम वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस यूज करेंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि यानी कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर। सिंगुलर अगर हमें मिले तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस। इस यहाँ पे हमें आई, यू, वी एंड दे, ये सब मिले तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब फर्स्ट। इज इट क्लियर? तो इतना हमने सीख लिया था कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं और नेगेटिव सॉरी दिस हाउ वेयर डू वी यूज एस और ईएस। जब हम एस और ईएस यूज करना है वो हम कैसे यूज करते हैं। ओके, टुडे वी विल लर्न हाउ टू मेक क्वेश्चन इन इट। इसमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ऑलरेडी यू हैव लर्न सम ऑफ द क्लासेस, सो यू नो अबाउट दैट। आपको पता होगा कि हम इसमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट रूटीन की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास ता है, ती है हो, तो हमें यूज करना है वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस। इसके अलावा अगर हमारे पास है ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, तो हम क्या यूज करेंगे, ओनली वर्ब फर्स्ट। अंडरस्टूड? इन सेंटेंस। अब हमारे पास एक सेंटेंस बना देता हूं आपको फॉर एग्जांपल। इसके लिए सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी हमने बनाया था कि वो खेलता है। ओके, ही प्लेस, मम्मा खाना बनाती है, मम्मा माँ अभी में से मम्मा खाना बनाती हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, ही है आ रहा है, इट मींस वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस। मम्मा cooks food. Okay, so this is our simple sentence. Now we will learn students how to make question in it. अब हम सीखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। वेरी सिंपल, इफ देयर इज एस और ईएस विद वर्ब फर्स्ट, यानी कि वर्ब फर्स्ट के साथ क्या हो, एस और ईएस हो, तो क्वेश्चन किससे बनेगा, डज से बनेगा। ओके, आप और वो यहाँ से हटने के बाद तभी टू के साथ लगेगा, तब डज बनेगा। ओके, तो यानी कि डज लगाने के बाद एस नहीं आएगा। ओके, लेट्स मेक सम क्वेश्चन। डज मॉम कुक फूड? अंडरस्टूड? यानी कि जो एस था हमारा वो कहाँ लग गया है,
डू के साथ लग गया है. इट मीन्स अब डज के बाद हम कुक्स नहीं लगाएंगे, अदरवाइज दैट विल बी रॉन्ग. डज मॉम कुक फूड? यस, मॉम कुक्स फूड. ओके, अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल कि रमन कार्ड्स खेलता है. सॉरी, रमन कार्ड्स खेलता है. पत्ती खेलता है. ओके, इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फुटबॉल. क्रिकेट खेलता है. फॉर एग्जांपल रमन क्रिकेट खेलता है. अंडरस्टूड? अब ता है हमारे पास आ रहा है. इट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं? वी हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस फॉर्म. ओके, सो रमन खेलना क्या होता है? प्ले, और एस ईएस लगा देंगे. रमन प्लेज क्या? क्रिकेट. अब फिर से हमारे पास एस आ रहा है. इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? डज से बनेंगे. डज जब एस और ईएस हो वर्ब फर्स्ट के साथ तो क्वेश्चन विल बी मेड विद द हेल्प ऑफ डज. ओके, डज रमन क्या? अब हमारे पास प्ले आ जाएगा. डज रमन प्ले क्रिकेट? यस, रमन प्लेज क्रिकेट. अंडरस्टूड? More example I would like to let you know that if we have more sentences like teacher class पढ़ाता है, ताहा आ गया तो टीचर पढ़ाना क्या होता है? टीच. टीच के साथ एस और ईएस लगा देंगे. टीचर टीचेज क्या? क्लास. अंडरस्टूड? क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? अब फिर हमें क्वेश्चन डज से बनाना है. ओके, डज टीचर टीच क्लास? क्योंकि टीच आएगा, क्योंकि जो एस और ईएस था वो हमने डू के साथ लगा दिया. डज टीचर टीच क्लास. अंडरस्टूड? आफ्टर दैट अगर हम बात मोर एग्जांपल कि मोनू बर्गर खाता है. मोनू बर्गर खाता है. ओके, सो मोनू ईट्स, क्योंकि ता है आ गया है हमारे पास. इट मींस वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस. ओके, मोनू ईट्स क्या? बर्गर. क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? फिर डज से बनेगा. ओके, यानी कि एस और ईएस हो वर्ब फर्स्ट के साथ तो क्वेश्चन बनाएंगे हम डज से बनेगा. ओके, और जब ओनली वर्ब फर्स्ट हो तो इसका क्वेश्चन बनेगा डू से बनेगा. दैट आल्सो आई विल टेल, ये भी हम बताएंगे आपको इसके बाद में. ओके, तो व्हाट वाज द एग्जांपल? क्या था? मोनू ईट्स बर्गर. क्वेश्चन कैसे बनेगा? डज से बनेगा. डज मोनू ईट, क्योंकि जो एस है वो हमने डू के साथ लगा दिया है. ओके, डज मोनू ईट बर्गर? यस, मोनू ईट्स बर्गर. एंड इफ वी हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस इन इट, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसमें, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनेगा डज नॉट से. ओके, लाइक इसमें हमने बनाया था कि रमन प्लेज क्रिकेट. डज रमन प्ले क्रिकेट? दिस इज क्वेश्चन. और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? नो, रमन डज नॉट क्या? प्ले क्रिकेट. अंडरस्टूड? रमन डज नॉट प्ले. अब हमारे पास डज है तो इसका मतलब यहाँ एस नहीं लगाया हमने. रमन डज नॉट प्ले क्रिकेट. ओके, यहाँ हम कैसे बनाएंगे? डज मॉम कुक फूड? नो, मॉम डज नॉट कुक क्या? फूड. अंडरस्टूड? इट मींस जहां हमारे पास एस और ईएस हो वो फर्स्ट के साथ तो नेगेटिव सेंटेंस डज नॉट से बनेगा, और क्वेश्चन किससे बनेगा? डज से बनेगा. ओके, लेट्स मेक सम मोर एग्जांपल्स. ऑरली वी वुड लाइक टू डिस्कस. अब हम बताना चाहेंगे कि लाइक अगर हमारे पास एक सेंटेंस और हो कि पापा कार चलाते हैं. ओके, पापा ड्राइव्स कार. अंडरस्टूड? चलाता है इट मींस ता है, सो एस और ईएस लगेगा. पापा ड्राइव्स कार. क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा? क्वेश्चन बनेगा डज से बनेगा. डज पापा ड्राइव कार?
Yes, Papa drives car. नहीं चलाता है. Papa does not drive car. So like that, all these three sentences we have made. Now we will discuss about it. अब हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि verb first के साथ क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. It is also very simple बेटा, but you must know about the difference. यानी कि s और es हो सेंटेंस में तो क्वेश्चन हमारा बनेगा does से बनेगा. And except it, अभी हम आपको बताते हैं कि s और es ना हो, only verb first हो तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा. Let's make some question like वे जिम जाते हैं. ओके, वे जिम जाते हैं. ओके, यानी कि जाते हैं. इट मीन्स प्लूरल. ओके, तो वर्ब फर्स्ट लगेगा. अंडरस्टूड. दे जाना क्या होता है? दे गो टू जिम. अंडरस्टूड. दे गो टू जिम. ओके, क्वेश्चन कैसे बनाएगा? अभी मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब फर्स्ट हो सेंटेंस में तो क्वेश्चन दूसरे बनेंगे. एस और ईएस हो तो डज से बनेगा बेटा, और जो वर्ब फर्स्ट हो तो दूसरे बनेगा क्वेश्चन. देखिए बनाते हैं कैसे बनेगा. डू दे गो टू जिम. यस, दे गो टू जिम. और नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू जिम. ओके, अब हमारा यहाँ नेगेटिव बनेगा, वो डू नॉट से बने. दे डू नॉट गो टू जिम. अंडरस्टूड. दिस इज आवर नेगेटिव सेंटेंस एंड दिस इज आवर क्वेश्चन. अंडरस्टूड. वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू लेक सॉरी लाइक मैं होमवर्क करता हूं. आई डू होमवर्क. आई डू होमवर्क. क्वेश्चन कैसे बनेगा? करना होता है डू. ओके, अब हमारा क्वेश्चन बनेगा डू से बनेगा. डू यू डू होमवर्क? यस, आई डू होमवर्क. और नहीं करता हूं, आई डू नॉट डू homework. Understood? So in this way question will be made. So all these two things have been told you. One more example like कि हम ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन लेते हैं. We take tuition. We take tuition. अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू से बनेगा. ओके, because there is no s, no es. Understood? To you take tuition. Yes, we take tuition. No, we do not take tuition. Understood? So like this, all these three things have been told here. How to make question and how to make a negative sentence. So dear students, once again I would like to let you know बेटा, as much you speak, जितना आप बोलते हो, oral practice करते हो, उतना ही आप इसका habitual हो पाएंगे. ओके, तो बोलना है. सिंपल थिंग, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. जब हमारे पास ता है, ती है, वो in Hindi, then we have to use s or es. Except if we do not have ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो, then we have to use only verb first form. So that's all for today. Have a good day. Be connected with these classes and keep liking, keep subscribing, and thank you for today. That's all. Have a good day. Thank you.